الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد عن علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور میرے نبی کا فرمان ہے جس شخص نے بھی ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2 حجوں کا ثواب لکھے گا اور 2 عمرہوں کا ثواب لکھے گا۔ آج ماہ رمضان کے وہ دن آ گئے ہیں جن میں یہ اعتکاف کرنا سنت ہے، مگر ہم وہ مسلمان ہیں جو ایسی چیزوں سے بے خبر ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس نے بھی میری سنت پہ عمل کیا کل قیامت کے دن میں اس کی شفا فرماؤں گا۔ آج کا جوان، آج کا مسلمان اعتکاف کرنے سے ڈرتا ہے کہ میں اعتکاف کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ اعتکاف ہر کوئی مسلمان کر سکتا ہے۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لو، پہلی بات یہ اپنی ذہن میں رکھ لو، اگر کوئی جوان، کوئی مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ میں اعتکاف کرنے کے لائق نہیں ہوں، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کسی سے پوچھا جائے وجہ بتاؤ کہ آپ اس کے لائق کیوں نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، میں پہلے گناہوں میں مبتلا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے مسجد کہاں تھی، مسجد میں داخل ہونے کے آداب کیا ہے، میں کیا اعتکاف کر سکتا ہوں۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اعتکاف کرنا ہی تو گناہوں کی تلافی بنتا ہے۔ اعتکاف کرنے سے ہی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے تب ہی تو اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ اعتکاف ایک ایسا ذریعہ ہے توبہ کرنے کا، اس جیسا ذریعہ میرے خیال سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے 24 گھنٹے، اللہ کے دربار میں 24 گھنٹے ذکر خدا کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اگر اس جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کرے تو بتاؤ مسلمانوں، پھر اس جیسی جگہ کون ہے جہاں اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے؟ یہ ہماری غلط سوچ ہے، بالخصوص جوانوں میں، مسلمان جوانوں میں یہ بالکل غلط سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ میں اعتکاف کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ اعتکاف کرنا سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سنت کے لائق ہر مسلمان ہے۔ اگر ہم ایسی ایک سنت کو اپنا لیں گے تبھی تو ہم
अपनी जिंदगी खूबसूरत बना सकते हैं। एतिकाफ करने से इंसान को तकवा हासिल होता है। एतिकाफ करने से इंसान गुनाहों से दूर रहता है। ऐसी सोच बिल्कुल गलत है कि मैं एतिकाफ करने के लायक नहीं हूं। अल्लाह ताला अपने बंदे को अगर उसने समंदर के पानी के बराबर भी गुनाह किए होंगे, हमारा रब करीम है। पहली बात ये समझो कि मेरा रब अपने बंदों पे करीम है। जुलेखा की तरफ देखो, बुत के सामने, या सनमी मुझे यूसुफ को अता कर। जुबान से अचानक सनमी की जगह समदी निकल गया। मेरे अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ, मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है। जिब्रील गया, मस्जिदों में ढूंढा, मिहराबों में ढूंढा। जब जिब्रील को कहीं नहीं मिला तो वापस आ गया, या अल्लाह आपने कहा मेरा बंदा मुझे बुला रहा है, कहां है, कौन सी जगह है जहां आपका बंदा आपको बुला रहा है। मेरे रब ने फरमाया, जिब्रील वो फलाने बुत खाने में बुत के सामने मुझे पुकार रहा है। जिब्रील ने पूछा, या अल्लाह आपका बंदा बुत खाने में बुत के सामने आपको पुकार रहा है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील वो सनमी पुकार रहा था, लेकिन जुलेखा की जुबान से सनमी की जगह समदी निकल गया। जिब्रील ने पूछा, या अल्लाह ये तो सनम को पुकार रहा है, ये तो बुत को पुकार रहा है। मेरे अल्लाह ने क्या जवाब दिया जवानो, फरमाया, जिब्रील ये सनम को पुकार रहा था, ये बुत को पुकार रहा था, लेकिन इसकी जुबान से एक बार यह समझी निकल गया, अगर मैं भी अपने बंदे को जवाब न दूं फिर बुत और मुझ में क्या फर्क है। हमारा रब अगर हम समंदर के पानी के बराबर भी गुनाह किए होंगे, आसमानों में जितने तारे हैं अगर उनके बराबर भी गुनाह किए हैं, जवानों एक बार अपने अल्लाह से या रब्बी इगफिरली मांगो, रब सारे गुनाह माफ करता है। हमारा रब करीम है, हमारा रब रहीम है, हमारा रब शफीक है अपने बंदे पर। ये गलत सोच है कि हम इसके लायक नहीं है, हम नमाज पढ़ने के लायक नहीं है। मेरे जवान में आजकल पता नहीं क्या तसव्वुरात पैदा हो गए हैं, निकाह कर लो, मैं निकाह के लायक नहीं हूं। क्यों? अभी मेरा खर्चा अपना पूरा नहीं होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। रब राज़िक है, रब हमारे रिज्क का जिम्मेदार है, रब तुम्हारा भी जिम्मेदार है। अगर तू निकाह करे तो उसका राज़िक नहीं बन सकता, उसका राज़िक भी अल्लाह, तेरा राज़िक भी अल्लाह। गलत सोच है। मैं ऐसे निकाह करने से टेंशन होता है, निकाह करने से परेशानी होती है। सोचो, अपनी तवारीख पे गौर करो। आप देखो हमारी तारीख है क्या, आप सोचो, आप कुरान पे गौर करो, कुरान पढ़ो, कुरान समझो। आप समझो ये औरत आई क्यों इस दुनिया में। औरत मर्द के लिए बनाई गई है। हजरत आदम को जब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, जन्नत में डाला, आदम जन्नत में रह के भी दिल का सुकून नहीं पा गया, दिल का करार नहीं पा गया। मेरे अल्लाह ने क्या किया, आदम के सुकून के लिए हजरत हवा को तख्लीक किया, हजरत हवा को बनाया। औरत की असल तख्लीक की वजह है क्या, ताकि आदम को सुकून मिले। सूरह आराफ आयत नंबर 189, लियस्कनु फीहा, ताकि आदम अलैहिस्सलातु वसलाम जब हवा के नजदीक जाए हजरत आदम को सुकून मिले। निकाह करने से सुकून हासिल होता है, निकाह करने से परेशानी नहीं होती है। निकाह करना सुन्नत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वसलाम है। मेरे जवान में क्या ख्यालात पैदा हो गए हैं, क्या तसव्वुरात बना लिए हैं।
अगर एहतिकाफ करूंगा एहतिकाफ करने के लायक नहीं हूं, अगर निकाह करूंगा निकाह करने के लायक नहीं हूं। एहतिकाफ करने से गुनाह माफ होते हैं, एहतिकाफ करने से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, निकाह करने से सुकून हासिल होता है, निकाह करने से हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पैदा होती है। निकाह करने से इंसान बुरे ख्वाहिशातों से दूर हो जाता है। दरअसल हमने निकाह को खुद परेशानी बनाई है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। ए मेरे बंदो, आप मौत से क्यों दूर हो जाते हो? आप मौत से कहां भाग जाते हो? अगर तुम लोहे के किल्लों में भी रहोगे मौत वहां आ जाएगी। आगे देखो कुरान क्या बयान फरमा रहा है, कुरान मजीद में है, अगर आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत आ जाए या खुशी आ जाए, अल्लाह ताला आपको खुशी अता करे, माल अता करे, आप कहते हो हाजा इंदल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन अगर आपको कोई मुसीबत आ जाए, आप ये नहीं कहते हो कि ये मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से है, नहीं, आप कहते हो ये मुसीबत मेरे निकाह की वजह से आ गई है। नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला नाराज होकर आपकी निकाह ही को आपके लिए परेशानी का सबब बनाते हो, क्योंकि आप खुशी पर कहते हो अल्लाह की तरह से है, मुसीबत पर कहते हो ये मेरे निकाह की वजह से हुआ है। इसी वजह से आजकल जब भी कोई निकाह करता है, 1 साल 2 साल के बाद बस निकाह किया, परेशानी बर्बादी, मुसलमानों को भी गुमराह करता है, नौजवानों को निकाह करने से डराता है। जैसे आज एहतिकाफ करने से नौजवान डरता है, पता नहीं वहां क्या करना है, पता नहीं वहां क्या होगा, पता नहीं वहां क्या अल्लाह ताला हमारे साथ करेगा। नहीं, एहतिकाफ करने से अल्लाह और उसका रसूल राजी होता है। एहतिकाफ में कुरान पढ़ना होता है, एहतिकाफ में अल्लाह ताला का जिक्र करना होता है। सुन्नतों से सुन्नत पैदा करने से अल्लाह और उसका रसूल राजी होता है। मेरे जवानों, गलत फहमी में मत पड़ो, आओ अपना वक्त अल्लाह और रसूल पे सर्फ करे, आओ अपना वक्त, अपना कुछ वक्त अल्लाह के रास्ते में निकाले। फिर देखो अल्लाह ताला हमारी जिंदगी कैसी खूबसूरत बनाता है, दुनिया भी खूबसूरत, आखिरत भी खूबसूरत बना देगा। हमारा अल्लाह ईमान रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। हमारा ईमान ये नबी की वरासत है, नबी की वरासत से हमें ये मिला है, हमें यकीन होना चाहिए। जब भी हम कोई नेक काम करे अल्लाह और उसका रसूल खुश और हमसे राजी हो जाते हैं।